Hello students, welcome back to the English grammar class. In previous class of English grammar, I had made you understand how to write a letter, right? मैंने आपको समझाया था कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप लेटर लिख रहे हो. So there were 5 paths for writing a letter. Which were they? Yes, sender's address. सबसे पहले sender's address आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, फिर डेट आएगी, फिर ग्रीटिंग जैसे कि डियर अंकल, डियर आंटी या डियर आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम या कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव्स का नाम. ओके, देन द बॉडी ऑफ द लेटर, पर्पस ऑफ द लेटर, किसके लिए आप लेटर लिख रहे हो, एंड लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में सेंडर्स नेम. ठीक है, सेंडर का नाम लिखना पड़ेगा आपको एंडिंग में. योर्स फ्रेंडली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, ऐसे करके आपको अपना नाम लिखना है. ओके, नाउ टुडे आई विल बी मेकिंग यू revise first of all the following points with the help of a video, and then we are going to do the exercise which is on page number 75. So first of all we'll see the video and revise the concept. Okay, now let's discuss the format of informal letter. First of all, you should write sender's address, that means yours address. Then write date. How to write a date? For example, suppose today the date is 2nd October. So you don't have to write date 2nd/10/20 or 19 anything. You have to write 2nd October. Name of a month is so long, just write OCT20. So always remember, in English, write date like this. Never write like this. Then you have to write salutation. Salutation is the usual way of beginning a letter. If you are writing a letter to your parents or your relative, you can write my dear father, mother, uncle, aunt, brother, sister, and so on. But if you are writing a letter to your friend, you must write the name of your friend. For example, my dear Alex. After salutation comes the body of the letter. Main body will be divided into 3 paragraphs. The first paragraph will be the introduction. So, in introduction, you can use sentences like how are you, or you have to mention the purpose why you are writing a letter. Or you can use like I received your letter. So these are the lines from which you can start your letter. Second paragraph will be contain your main content and it should include the matter in detail. And the third will be your concluding paragraph. In third paragraph, you have to sum up the reason for writing the letter, like say a meaningful and affectionate goodbye to the reader. Then after one line comes the subscription like yours lovingly or yours affectionately or yours loving son or daughter or yours loving friend. And in the end comes the sender's name. so students, please open page number 75 in your textbook. Now what is written to you? The question is such that now write a letter to your friend congratulating him or her on his or her winning a singing competition. इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है congratulating him, उसको बधाई दे के on winning, वो आपके जो फ्रेंड है वो एक सिंगिंग कंपटीशन जीती है या जीता है. सो आपको उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए एक लेटर लिखना है. ओके, सो ब्लैंक स्पेस इज गिवन टू यू, यू हैव टू राइट द लेटर देयर. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या था, 5 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट आपका क्या था, सेंडर्स एड्रेस. अब मैं लेटर लिख रही हूँ तो मेरे घर का एड्रेस. ओके, आप अपने घर का एड्रेस यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे, या फिर आप यही जो एड्रेस मैं लिख रही हूँ वही लिख दो. ठीक है, 5 लक्ष्मी कॉलोनी, संस्कार नगर, भुज. ओके, you have to write this letter that 5 Lakshmi Colony, Sanskar Nagar, Bhuj.
देन यू विल राइट द डेट. ओके, डेट जिस दिन पे हम ये लेटर लिख रहे हैं. ओके, सो आज की डेट आप डालोगे ऑन द डे वी आर राइटिंग द लेटर. मतलब आज की डेट है 15th April 2021. सो यू विल राइट 15th April 2021. ओके, देन क्या आएगा? ग्रीटिंग. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ग्रीट. तो आपके फ्रेंड का नाम, डियर, कोई भी नाम, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम आप लिख सकते हो, गर्ल और बॉय. ठीक है, डियर राज और प्रिया, कोई भी एक नाम आप लिख सकते हो, आपके फ्रेंड का नाम लिख सकते हो यहाँ पे, बट द स्पेलिंग शुड बी करेक्ट. ओके, एंड स्टार्टिंग लेटर शुड बी कैपिटल बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. ओके, प्रॉपर नाउन है इसलिए स्टार्टिंग लेटर कैपिटल आएगा. ओके, और आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हो इसमें. देन ग्रीटिंग्स, बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, द पर्पस फॉर विच वी आर राइटिंग द लेटर. ओके, सो व्हाट यू विल राइट? इट गिव्स me immense pleasure to know that you won the first prize in the singing competition. Okay, it gives, क्या लिखोगे आप? It gives me immense pleasure to know you won the first prize in the singing competition. मतलब मुझे बहुत सुन के अच्छा लगा कि तुम फर्स्ट प्राइज जीते हो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में. ओके, I congratulate you from the bottom of my heart. ओके, सो फिर हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे. ओके, जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं. ठीक है, हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो हम उसको पहले बोलेंगे कि हमको खुशी हुई सुन के कि तुम फर्स्ट प्राइज़ जीती हो सिंगिंग कंपटीशन में. फिर हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे वो पर्सन को कि आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, दिल से तुमको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ. ओके, देन आई विश यू ऑल द लक टू ब्लूम as a talented singer in the coming future. So क्या लिख रहे हैं हम? I wish you all the luck to bloom as a talented singer in the coming future. हम तुमको विश करते हैं कि तुम आगे जाके एक टैलेंटेड सिंगर बनो. हमारे विशेष तुम्हारे साथ है कि आगे जाके तुम एक बहुत बड़े और टैलेंटेड सिंगर बनो. ओके, एंड देन व्हाट यू विल राइट? वन लाइन छोड़ के, 1 या 2 लाइन्स छोड़ के. ओके, 2 लाइन्स छोड़ के आप क्या लिखोगे? योर्स लविंगली, कॉमा आपका नाम. ओके, जैसे कि मैं लिख रही हूँ मैं ये लेटर, तो मैं अपना नाम लिख दूँगी, ज़ेबा. ओके, आप अपना नाम लिखोगे. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो यहाँ पे आप देखो, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि आप अपना एड्रेस लिख लोगे. ठीक है, फिर आप क्या करोगे? फिर डेट लिखनी है आपको. डेट लिख के फिर आप 1 लाइन छोड़ के फिर आप यहाँ पे लिखना डियर राज या प्रिया, ग्रीटिंग्स आप फिर लिखना. ओके, एंड देन नेक्स्ट लाइन से आप स्टार्ट करोगे, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर. ओके, देन सी लास्ट में आप क्या करोगे? लास्ट में भी जब आप लिख रहे हो इन द कमिंग फ्यूचर, इन द कमिंग फ्यूचर के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, 1 लाइन, एंड देन 1 लाइन के बाद आप लिखोगे योर्स लविंगली लेफ्ट हैंड साइड में. सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में आएगी. ओके, ठीक है. ग्रीटिंग से पहले आप एक लाइन छोड़ोगे एंड योर्स लविंगली के पहले आप एक लाइन छोड़ोगे. ओके स्टूडेंट्स, so I hope this is clear. Now you have to write this letter in your textbook and in your notebook as well. Okay, so the next question will be doing in the next class. Till then, study well and do your homework regularly. Thank you.